हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमएलटी एडवांस क्लासेस। आज का वीडियो स्पेशली बीएमएलटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है। बीएमएलटी फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स सर पर हैं और माइक्रोबायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको टॉपर भी बना सकता है और अगर स्ट्रैटेजी गलत हुई तो मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ 2018 से 2025 तक के पेपर्स का निचोड़, एक ऐसा मॉडल पेपर जो 2026 के एग्जाम्स के लिए गेम चेंजर होने वाला है। सिर्फ क्वेश्चंस हाई नहीं, आज मैं बताऊंगी कि एमपीएमएसयू के टॉपर्स अपनी आंसर शीट कैसे लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर मैनेजमेंट की। 3 घंटे का टाइम और 100 मार्क्स का पेपर। स्टूडेंट्स अक्सर पहले 15 मार्क्स के क्वेश्चंस में 1 आवर्स लगा देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। मेरा फॉर्मूला याद रखिए। सेक्शन 1 2 मार्क्स, इन्हें सबसे पहले अटेम्प्ट करें। यह फुल मार्क्स देने वाला सेक्शन है। टू द पॉइंट लिखे, सिर्फ 50 to 60 वर्ड्स। सेक्शन सेकंड 10 मार्क्स, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट और डिटेल दोनों दिखानी है। 2 to 3 पेजेस काफ़ी हैं। सेक्शन थर्ड 15 मार्क्स, इन्हें लास्ट के लिए बचाकर रखें, लेकिन टाइम इतना बचे कि आप डायग्राम्स बना सकें। द गोल्डन सीक्रेट, डायग्राम्स और प्रेजेंटेशन, एक ऐसी बात जो कोई नहीं बताता। माइक्रोबायोलॉजी इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। अगर एग्जामिनर आपकी कॉपी खोले और उसको बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या और कोई क्लियर डायग्राम दिख जाए तो वो थियरी कम पड़ता है और मार्क्स ज़्यादा देता है। टिप्स: पेंसिल हमेशा शार्प रखें। लेबलिंग हमेशा राइट साइड में करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बोल्ड करें या अंडरलाइन करें। मिस्टेक जो नहीं करनी, कभी भी आंसर को एक बड़ा पैराग्राफ ना बनाएं, हमेशा पॉइंट्स में लिखें। चलिए देखते हैं हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर 2026। फर्स्ट, enumerate 2 examples of gram-positive and gram-negative Cauchy. Second, define sterilization and disinfection. Third, name 2 transport media used in microbiology. Fourth, mention the temperature and time for autoclaving. Fifth, what is the use of immersion oil in microscopy? Sixth, name 3 important DNA viruses. Seventh, define antigen and antibody. Eighth, enumerate the constituents of Robertson's cooked meat broth. Ninth, name the causative agent and vector of dengue. 10th, write 2 functions of the capsule in bacteria. 11. Name the different classes of immunoglobulins, Ig. 12. Enumerate 2 important opportunistic fungi. 13. Define culture media and give 1 example of enriched media. 14. Name 2 diseases transmitted by blood transfusion. 15. What are the colors of BMW biomedical waste bins for sharp and infectious waste? 16. Name 3 nematodes with pathogenic significance. 17. Define prokaryotes with an example. 18. Write the uses of isopropyl alcohol in the lab. 19. Name the causative agent of syphilis. 20. What is pasteurization? 10 marks के important questions. First, explain the bacterial growth curve with a well-labeled diagram. Second, describe the principle, procedure, and uses of gram staining. Third, differentiate between hot air oven and autoclave. Fourth, explain the principle and types of ELISA. Fifth, describe the classification of fungi with suitable examples. Sixth, write a note on biomedical waste management, BMW in a lab. Seventh, explain the collection, transportation, and processing of urine samples. Eighth, describe the structure and functions of a bacterial cell wall. Ninth, write about the morphology and lab diagnosis of Candida albicans. 10th, explain the principle and application of a colorimeter. 11. Discuss various methods of anaerobic culture. 12. Write a note on sodium hypochlorite as a disinfectant. 13. Describe the life cycle and pathogenesis of Entamoeba histolytica. 14. Explain the general safety measures to be followed in a microbiology lab. 15. Describe the principle and procedure of Ziehl-Neelsen staining. 15 marks के most important questions. First, describe in detail the morphology, life cycle, and lab diagnosis of Plasmodium vivax, malaria. Second, define antigen-antibody reactions. Explain the principle and types of agglutination and precipitation reactions. Third, describe the morphology, life cycle, pathogenesis, and laboratory diagnosis of Ascaris lumbricoides. Fourth, what is sterilization?
Discuss in detail about moist heat sterilization with quality control measures. 5th, explain the morphology, clinical features, and lab diagnosis of human immunodeficiency virus, HIV. 6th, describe the different classes of antibodies. Discuss the structure and properties of IgG and IgM in detail. 7th, discuss the collection, preservation, and processing of stool and blood samples in a parasitology lab. 8th, describe the morphology, pathogenesis, and laboratory diagnosis of Staphylococcus aureus. 9th, write a detailed essay on various culture methods used in a microbiology laboratory. 10th, describe the morphology, life cycle, and lab diagnosis of Leishmania donovani, काला अजहर. इस सेक्शन में मलेरिया, प्लाज्मोडियम और अस्कारिस की लाइफ साइकिल हमेशा आती है. इनके फ्लोचार्ट्स बनाकर प्रैक्टिस करें. अगर आप लाइफ साइकिल फ्लोचार्ट में दिखाते हैं तो एग्जामिनर समझ जाता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. माइक्रोबायोलॉजी के पेपर्स चेक करते वक्त एग्जामिनर्स कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स और हेडिंग्स ढूंढते हैं. किसी भी पैथोजन बैक्टीरिया, पैरासाइट, वायरस का आंसर हमेशा सिस्टमैटिक सीक्वेंस में लिखें. पहले मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिस, रूट ऑफ एंट्री, क्लिनिकल फीचर्स, लैबोरेटरी डायग्नोसिस, स्पेसिमेन कलेक्शन, ब्लड, स्टूल, यूरिन, CSF की डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी, कल्चर आइडेंटिफिकेशन, सीरोलॉजी, एडवांस टेस्ट्स, एलाइजर, PCR. लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट लिखने से मार्क्स अच्छे मिलते हैं. इंपॉर्टेंट टिप्स. नो पैराग्राफ रूल. पूरे पैराग्राफ पढ़ने का वक्त किसी एग्जामिनर के पास नहीं होता. हमेशा बुलेट पॉइंट्स का यूज करें. हर पॉइंट के बीच एक लाइन का गैप छोड़े ताकि कॉपी नीट और क्लीन दिखे. सीरियल ऑर्डर मेंटेन करें. MPMSU के इंस्ट्रक्शंस में साफ लिखा होता है कि क्वेश्चंस और सब क्वेश्चंस को सीरियल ऑर्डर में हाई सॉल्व करें. अगर आपको सेक्शन 1 के 10 क्वेश्चंस करने हैं तो उन्हें एक साथ एक ही जगह पर करें. बीच बीच में पूरे पेपर में बिखरा कर ना लिखें, इससे मार्क्स कट होंगे. शुरुआत के पेजेस पर कोई कटिंग, ओवरराइटिंग या वाइटनर का यूज बिल्कुल ना करें. पहला इंप्रेशन बढ़िया होगा तो एग्जामिनर आगे के चेक करते वक्त ज्यादा लिबरल हो जाता है. कलर कोडिंग. एग्जाम में डायग्राम्स के लिए हमेशा पेंसिल या कलर पेंसिल का हाई यूज करें. पेन का यूज डायग्राम में बिल्कुल ना करें. और एंड में सबसे बड़ी बोनस टिप. माइक्रोबायोलॉजी में ब्लैंक स्पेस छोड़कर आना सबसे बड़ी गलती है. अगर किसी क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर नहीं भी पता तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी याद हो, चाहे वो सिर्फ एक डायग्राम हो या यूजेस एप्लीकेशन का कोई मेथड लिख कर जरूर आना. नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए अटेम्प्ट करने पर कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करें. आपका एक कमेंट हमारा दिन बनाता है. इसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.